ناظرین آداب، ٹی نیوز کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم میں پیش ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے 14 نکاتی یادداشت پیش۔ تلنگانہ کو خصوصی موقف دینے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ KCR کی اپیل۔ KCR کے ذریعے ہی تلنگانہ کا حصول ہوا یقینی، صدر جمہوریہ ہند۔ عالمی ساجھیداری کانفرنس میں شرکت کے لیے پرنب مکھرجی کو KCR نے کیا مدعو۔ کل سے تلنگانہ اسمبلی سیشن، پرسوں اسپیکر کا ہوگا انتخاب۔ آج ریاستی کابینہ کا اجلاس، وزراء گورنر نرسمہن کے خطاب کو دیں گے منظوری۔ ڈپٹی وزیر اعلیٰ محمود علی آج لیں گے جائزہ، ذمہ داری پوری دیانتداری و ایمانداری کے ساتھ نبھانے کا عہد۔ آج شام سے مچھلی دوا کی تقسیم، ایگزیبیشن گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر تیاریاں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر اعظم مودی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کو 14 نکاتی یادداشت پیش کی، جس میں پولاورم کے نشیبی دیہاتوں کو تلنگانہ میں برقرار رکھنے اور پرانہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی شناخت دینے اور تلنگانہ کو خصوصی درجہ دینے کی اپیل کی، جبکہ تلنگانہ کی صنعتوں کو ٹیکس میں خصوصی رعایت دینے اور 4000 میگا واٹ تھرمل پاور پلانٹ قائم کرنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ، ہارٹیکلچر اور قبائلی یونیورسٹیوں کے قیام کے علاوہ بیارم میں اسٹیل صنعت قائم کرنے، حیدرآباد کو سلم بستیوں سے پاک بنانے اور موسیٰ ندی کے لیے بھی فنڈز مختص کرنے کی گزارش کی۔ اس کے علاوہ پسماندہ علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے 15,000 کروڑ روپے مختص کرنے اور تعطل کا شکار پروجیکٹوں کی تکمیل اور نیا ریلوے پروجیکٹ کی منظوری اور قاضی پیٹ میں کوچ فیکٹری قائم کرتے ہوئے خصوصی ریلوے ڈویژن کی شناخت دینے کی اپیل کی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ KCR نے صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ کے مسائل سے وزیر اعلیٰ KCR نے صدر جمہوریہ ہند کو واقف کروایا۔ صدر جمہوریہ ہند نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس کے علاوہ KCR نے حیدرآباد میں منعقد ہونے والی 164ویں عالمی ساجھیداری چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر جمہوریہ ہند کو مدعو کیا۔ وزیر برائے اسمبلی امور ہریش راؤ نے بتایا کہ جاریہ ماہ کی 9 تاریخ سے اسمبلی سیشن شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسی دن عبوری اسپیکر کی حیثیت سے سینئر قائد جانا ریڈی حلف لیں گے۔ دوسری جانب گورنر کے خطاب سے متعلق قرارداد پر آج کابینی اجلاس منعقد کرتے ہوئے مذاکرات کرنے کا اعلان کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ 9 منتخبہ اراکین اسمبلی کے لیے تربیتی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی آج صبح 11 بجے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ ڈی بلاک میں ان کو مختص کردہ چیمبر نمبر 430 میں کل قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر محمد محمود علی نے کہا کہ وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ عوامی مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ 8 جون 11 بجے یہاں پر ریونیو منسٹر کا چارج لے رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور ہمارے KCR صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ یقیناً میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے اور ایمانداری سے کام کروں گا جہاں تک ہو سکے، چونکہ ہماری پارٹی کو پاور میں آتے ہی اقتدار پر نہیں آئی۔ 14 سال ہم پوراٹم کرتے رہے، تلنگانہ کے لیے لڑتے رہے، تو ہمیں کافی لوگوں کا دکھ درد ہمیں معلوم ہے۔ لوگ جو جس طریقے سے تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے، اسی لیے تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی گئی۔ اور ہمارے جو مہاتما لیڈر ہے KCR صاحب، انہوں نے خود 2009 میں مرن پر بیٹھا۔ گاندھی جی کے بعد کوئی ہندوستان میں عوام کو انصاف دلانے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا یا موومنٹ چلائے تو وہ KCR صاحب ہی ہے۔ ختم قرآن ہے اور کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے صدر محترم کی درازی عمر، صحت اور خاص طور سے ہم سے اللہ تعالیٰ اچھا کام لے لے، مجھ سے نہیں بلکہ ساری تمام ٹیم سے
टीआरएस के तमाम जो मिनिस्टर्स है और वो उनके लिए अल्लाह ताला हमेशा हिम्मत और ताकत बख्शे। और सदर मोहतरम को भी हिम्मत और ताकत से तमाम मसाइल का मुकाबला करने की हिम्मत अता फरमा, क्योंकि पूरा टर्म अलग शक्ल थी, आज इख्तिदार अलग है। टीआरएसवी अजीमतर हैदराबाद के सदर बाबा फसीउद्दीन ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर बाबा फसीउद्दीन ने गुलपोशी और शालपोशी करके उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने भी बाबा फसीउद्दीन की गुलपोशी करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला टी राजा ने ओहदा का जायज़ा लेने के बाद गांधी अस्पताल का दौरा किया और वहां पर मरीज़ों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मरीज़ों को दरपेश मसाइल से वक्फियत हासिल की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गांधी अस्पताल में मरीज़ों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने को यकीनी करार दिया। वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मवेशियों की अफजाइश के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने का ऐलान किया। उन्होंने रियासत भर में जुमला 537 हैवानी दवाखाने कायम करने का ऐलान किया। इसके अलावा करीमनगर और महबूब नगर अजला में मवेशियों के लिए खुसूसी मराकिज़ कायम करने का इरादा ज़ाहिर किया। इससे कबल वज़ीर ने सेक्रेटेरिएट में महकमे मवेशी पालन के ओहदेदारों के हमरा जायज़े इजलास मुनक़िद किया। हैदराबाद के काचीगुड़ा में कल शब मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। निम्बोली अड्डे पर गैर मजाज तौर पर गैस की रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर फट पड़ा और आग के शोले भड़क उठे। इस हादसे में 3 अफराद जहां बहक हो गए। इस धमाके की वजह से अतराफ व अकनाफ के मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है और मकामी अवाम में खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर डिप्टी वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़राए नाइनी, इटेला, पद्मराव समेत दीगर कायदीन ने मुकाम हादसा का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला नाइनी ने कहा कि गैर मजाज हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। సంఘటనలు ఎక్కడ జరిగినా ఏ బస్తీలో జరిగినా వారి మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం, వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు। ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరు చేసినా వాళ్ళని వదిలిపెట్టేది లేదు। అందుకొరకే బస్తీ వాళ్ళు కూడా సహకరించాలి। ఇటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరిగే వాళ్ళ మీద పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి సహకరించాలి। అప్పుడు పోలీసు యాక్షన్ తీసుకుంటది, తీసుకోకపోతే మనం వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకొస్తాం। బాధిత కుటుంబాలకు ఎట్లా న్యాయం చేస్తాం, బాధితులకు ఎట్లా న్యాయం చేస్తాం? తప్పకుండా వాళ్ళ ఆ పిల్లగానికి న్యాయం చేస్తాం, తప్పకుండా పరిష్కారం చేస్తాం। नाज़रीन, खबरनामे में लेते हैं अब एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, खबरनामे में दोबारा आपका खैर मकदम है। ज़िले आदिलाबाद में सूरजमुखी के तखूम की तकसीम ज़ोर शोर से जारी रही। वज़ीर जंगलात व सयाहत जोगू रामन्ना ने तुखुम की तकसीम अमल में लाई। जोगू रामन्ना ने कहा कि सब्सिडी के तुखुम और खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। इस प्रोग्राम में ज़िलाई कलेक्टर अहमद बाबू, जॉइंट कलेक्टर लक्ष्मीकांतम और महकमे ज़राअत के ओहदेदार समेत किसानों ने शिरकत की। बोधन TRS MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना के किसानों को कर्ज़जात की माफ़ी के मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किसानों से पीर तक सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की। शकील आमिर ने फिर एक बार वाज़ेह कर दिया कि TRS हुकूमत इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल आवारी करेगी। इससे कबल उन्होंने ज़िले निज़ामाबाद के बोधन में ज़राई मार्केट दफ्तर में तुखुम की तकसीम अमल में लाई। क़ियाम तेलंगाना के ज़िमन में निज़ामाबाद मुस्तखर पर महकमे अक़लियत व बहबूद की जानिब से मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी व मेहमान शोरा ने शिरकत करते हुए सामाइन हज़रात को काफ़ी महजूज़ किया। इस तक़रीब में TRS ज़िलाई अक़लियती सेल के सदर तारिक अंसारी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर तारिक अंसारी ने अवाम को क़ियाम तेलंगाना की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ज़िले आदिलाबाद के निर्मल में महकमे बल्दिया की जानिब से तेलंगाना की तासीस तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी MLA इंदिरा करण रेड्डी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मुकामी MLA ने सबसे पहले शोहदा को खिराज तहसीन पेश की और बादज़ा रियाली की शक्ल में वयसार फंक्शन हॉल पहुँचे, जहाँ पर बच्चों ने रक़्स करते हुए सभी को महजूज़ किया।
कुल हिंद मरकजी रहमत आलमी कमेटी के ज़ेर एहतमाम 13 जून को मुगलपुरा ग्राउंड पर जलसे शब बारात का एहतमाम किया जाने वाला है, जिसकी सदारत अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी नायब शेखुल जामे निज़ामिया व खतीब मक्का मस्जिद करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम अशरफ हबीबी डरबन साउथ अफ्रीका शिरकत करेंगे। इसके अलावा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईसुल क़ादरी उत्तर प्रदेश और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन क़ादरी बरेली शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन ने अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए सवाब दारान हासिल करने की अपील की। आलम इस्लाम के लिए कुल हिंद मरकज़ रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम बर्र सग़ीर हिंद का अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल 13वां सालाना मरकज़ी जलसा शब बारात 13 जून 2014 बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमक़ाम मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेक़ाद अमल में आ रहा है, जिसकी सदारत हैदराबाद के नामवर आलिम दीन अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी नायब शेखुल जामे निज़ामिया और ख़तीब मक्का मस्जिद इंशाअल्लाह सदारत फरमाएंगे। इसके अलावा कुल हिंद मरकज़ रहमत आलम कमेटी के खुसूसी दावत पर लब्बैक कहने वाली आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम अशरफ हबीबी जो साउथ अफ्रीका डरबन से तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत का खुसूसी ख़िताब और मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस फ़लस्तीन व बाज़ियाबी बाबरी मस्जिद के ज़िमन में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत की तरक्की के वादे पर अटल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में बरामदात के लिए बड़ी बड़ी सनतें कायम की जाएंगी। दूसरी जानिब तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग की सनत के क़याम के लिए मुताल्लिक़ा वज़ीर से मुज़ाकरात करने का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, ख़बरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अब्दुल साजिद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। आदाब।